So let us start with matrices. Already in the last class, we have seen the definition of matrices. We have also seen the different types of matrices. Let us quickly revise what we have done in the last class. First of all, we have defined matrix. Okay, so matrices is nothing but a rectangular arrangement of numbers written inside a square bracket. For example, 5, 3, 2, 1 minus 1 2. This is a matrix and the order of this matrix is 2 cross 3. How do we write down the order of the matrix? It is like the first number is the number of rows in the matrix and the second one is the column of the matrix. So 1 2, there are 2 rows, and 1 2 3, there are 3 columns. That is why this matrix is of order 2 by 3. Another, if you look at this matrix, then this is also a matrices where we have 1 2, there are 2 rows but there is only one column, so it is 2 by 1, 2 row and 1 column. Okay, so this is the way we write the order of the matrix, and this is the way we represent a matrix. Normally matrix are denoted by capital alphabets, capital A, capital B, and their elements are denoted by small alphabets AB. Okay, for example, in this matrix A, the first element 5 can be written as A11, first row, first element. Then the second will be A12, A13, first row, third element. Similarly, the second row will be A21, A22, A23. So the elements of the matrix are written in this format Aij, where I is the row and J is the column. Similarly, B can also be written as the first element is A11, first row, first column, and the next is 21, that is second row, first column. So this way we represent any particular matrix in Aij form. Okay. After definition, we have seen different types of matrices. Types of matrices. Okay. In that, the first type was row matrix. Row matrix is a matrix which has only one row. Yes, the matrix has only one row, then it is called as row matrix. Second was column matrix. Column matrix is a matrix which has only one column. Okay. Then the third is zero or null matrix, is a matrix where every element of the matrix is zero. Okay, irrespective of the order, whatever may be the order of the matrices, but if every element of the matrix is zero, then it is said to be null matrix. Okay. Next, square matrix. So square matrix is a matrix where number of rows is equal to number of columns. अगर जितने रो हैं उतने ही कॉलम्स होंगे तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है. स्क्वायर मैट्रिक्स में हम लोग ने 2-3 चीज़ें सीखी थी, लाइक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं. डायगोनल एलिमेंट्स, और डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो जो बच जाएंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स भी होते हैं.
डायगनल एलिमेंट्स वो होते हैं जहाँ पर आई इक्वल टू जे होता है, राइट? सो इट्स लाइक A11, A22, A33, ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं उसको डायगनल बोलते हैं। बाकी जो भी रिमेनिंग है उसको नॉन डायगनल बोलते हैं। Because of these diagonal elements, non-diagonal elements, we have the next type, which is called as diagonal matrix. Diagonal matrix. So diagonal matrix is a matrix where non-diagonal elements, non-diagonal elements are equal to zero. डायगनल एलिमेंट्स में कोई कंडीशन नहीं है, डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट सारे के सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। उसके बाद हम लोग ने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या था? तो इसमें डायगनल मैट्रिक्स का तो कंडीशन है ही कि जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होने चाहिए वो ज़ीरो होने चाहिए, एंड जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो सबके सब इक्वल, मतलब सेम होने चाहिए। अगर A11 2 है तो A22 भी 2 होगा, A33 भी 2 होगा, सारे डायगनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। देन इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट is identity or unit matrix. Identity or unit matrix. What is this? So here non-diagonal elements must be zero and all diagonal elements should be same, but it should be equal to one only. So same तो होना चाहिए, but वो same भी number क्या होना चाहिए? One होना चाहिए. Then we call that matrix as a unit matrix. After that, next was upper triangular matrix. Upper triangular matrix. So upper triangular matrix is a matrix where all the elements below the diagonal are zero. अगर डायगनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं तो मैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूँगा। और नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होते हैं? इफ all the elements above the diagonal are zero, then it is called as lower triangular matrix. And the last one, 10th one, is called as triangular matrix. Triangular matrix. So triangular matrix is a matrix if the matrix is either lower or triangular, either lower or upper triangular matrix. Okay, so triangular matrix is a matrix where a matrix is either lower और अपर, दोनों में से कोई एक अगर होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड ऑल द टाइप्स ऑफ द मैट्रिसेस वेरी वेल। This is what we have done with example in the last lecture. Okay, now we will move ahead with few more types of matrices. So let me take out the textbook.
Okay. So up to 10th we have done. We have to start with 11th one. Okay. So 11th one, pay attention here, is a symmetric matrix. Now what is symmetric matrix? A matrix A, Aij n cross n, because it's a square, so number of rows equal to number of column, in which Aij equal to Aj for all Ij, then it is called as a symmetric matrix. So very important is this Aij equal to Aj. कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट है A. Can you tell me what is the position of this A element? What is the position of this A element? 1 1. Okay. So by this rule Aij should be equal to Aj. तो 1 1 किसके इक्वल होना चाहिए? 1 1. उसका उल्टा भी वही होगा, राइट? सो इसका मतलब A should be equal to A. So that's obvious. 1 1 का एलिमेंट 1 1 के एलिमेंट से तो इक्वल ही होगा. So I no need to check that. Similarly B, the position is 2 2. उसका जो उल्टा होगा वो भी 2 2 होगा. So I no need to check that also, because A22 will be equal to A22. And similarly C, that is 3 3. So these diagonal elements I no need to check, because it's obvious that 1 1 will be equal to 1 1, 2 2 will be equal to 2 2, and 3 3 will be equal to 3 3. Now let us check the other values apart from these three. So this H, the position is 1 2. The position of H is 1 2, right? It should be equal to 2 1. Aij equal to Aji. So ये देखो, ये H है 1 2 पे. अभी 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे कौन है? H है. तो यस, दे आर इक्वल. तो A12 इक्वल टू A21. ये 1 पेयर हुआ. उसके बाद ये पेयर कौन सा है? ये G. दिस इज 1 3. 1 3 should be equal to 3 1. That is third row first column. You can see even 1 3 is equal to 3 1. This is the second pair, right? उसके बाद F देख लो. F, that is 2 3. That should be equal to 3 2. F है यहाँ पर. तो अपार्ट फ्रॉम डायगोनल, अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है तो 9 एलिमेंट्स में से 3 तो डायगोनल है, तो 6 बचते हैं. तो 6 का 3 पेयर ही होगा ना. तो 1 2 2 1 होगा, 1 3 3 1 होगा, और 2 3 3 2 होगा. दैट्स ऑल. तो वो सारे अगर वैल्यूज सेम है, Aij इक्वल टू Agi है, then we call that matrix as a symmetric matrix. Is it clear everyone? Total 3 pairs, not 6 pairs. 1 पेयर में 2 एलिमेंट आ गया ना. डायगोनल को छोड़ देंगे, देन 3 पेयर. ओके. फ्यू मोर एग्जांपल्स हियर. 2 by 2 में, 2 by 2 में डायगोनल को देखो ही मत. तो नॉन डायगोनल में देखना है तो 1 का पोजीशन है 1 2, और इसका पोजीशन है 2 1. तो यस, 1 2 इज इक्वल टू 2 1. तो 2 by 2 में बस एक ही एलिमेंट चेक करना होगा कि वो इक्वल है कि नहीं. सी में देखो, डायगोनल को लीव कर दो. This is 1 2, this is 2 1 equal. This is 1 3 minus 7 3 1 minus 7 equal. 2 3 minus 1 3 2 minus 1 equal. These two are also symmetric matrix. Okay. Next question. Note में देखो, the scalar matrices are always symmetric. Why? Because scalar matrix में क्या होता था students, if you remember, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता था? डायगोनल्स आर सेम, नॉन डायगोनल्स आर जीरो. तो अगर सारे के सारे एलिमेंट जीरो है डायगोनल को छोड़ के, तो जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, वो तो होने वाला ही है. बट ऑब्वियसली, यस और नो? सो आई कैन से दैट एवरी स्केलर मैट्रिक्स is a symmetric matrix. Yes, element should be same for Aij and for Aji. डायगोनल कुछ भी चलेगा, बिकॉज वो तो खुद के इक्वल ही होगा ना. सिमिलरली नल मैट्रिक्स ऑल्सो. अभी नल मैट्रिक्स में तो सबके सब जीरो होते हैं, तो किसको किसके भी इक्वल हम बता सकते हैं, तो भी वो इक्वल ही होगा, राइट? So this is all about symmetric matrix. Okay.
Now the next is skew symmetric matrix. Is slightly same as that of symmetric. There is a slight change in that. A symmetric matrix is a square matrix in which Aij is negative of Aji. वहां पर क्या था, अगर Aij 2 है तो ये 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए. अब ऐसा नहीं है, नेगेटिव होना चाहिए. मतलब अगर ये 5 है तो ये -5 होना चाहिए, अगर ये -2 है तो ये +2 होना चाहिए. अगर ऐसा है प्लस, तो इसके नहीं चलेगा. और भी एक कंडीशन है, इन स्क्यू मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0. ईच डायगोनल एलिमेंट इज 0, क्योंकि अगर 0 नहीं होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई भी नहीं होगा, क्योंकि A11 शुड बी इक्वल टू -A11. तो अगर A11 में 5 होगा तो -A11 तो -5 हो जाएगा, तो 5 विल नॉट बी इक्वल टू -5. तो 0 is the only number which is equal to its negative value, right? 0 is the only number which is equal to its negative value. तो 0 is equal to -0 लिख सकते हैं, because -0 भी क्या होता है, 0 ही होता है. इन शॉर्ट कंफ्यूज नहीं होना है, डायगोनल 0, बाकी के सब एक दूसरे के नेगेटिव, मतलब Aij इक्वल टू -Aj. लेट्स सी दिस एग्जांपल. डायगोनल 0 है, 1 2 का पोजीशन 5 है, 2 1 का पोजीशन -5. इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बी देखो, 0 0 0 डायगोनल 0 है, 1 2 4 2 1 -4, 1 3 -7 3 1 +7, 2 3 5 3 2 -5. So they are negative of each other. A null matrix is always a skew matrix because all the elements are 0 here. Have you all understood symmetric matrix and skew symmetric matrix? Okay. So after that, the next is determinant of a matrix. This is not the type, but we can also calculate the determinant of matrices. Okay. So if A is a matrix, the determinant of matrix is given by like this, or DETA. Normally we use this symbol. Suppose A एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया है, दिख रहा है 1 3 -5 4 2/2 का. If you are asked to find out the determinant of this matrix, what we will do? We will write A को mod A, determinant of A, and we will replace the square brackets and we will put two straight lines. Jayashree's question is, sir, how could be the null matrix be equal to skew symmetric matrix? Because null matrix में सारे elements 0 होते हैं, जयश्री. So if all the elements are 0 here, see, सारे elements 0 है, तो null diagonal तो 0 चाहिए था, वो तो है ही. अब 4 should be equal to -4, right? 4 -4 होना चाहिए, तो 0 is -0. This 0 will be -0 because -0 is 0 only ना. तो नल मैट्रिक्स में हमको कोई चेक करने की जरूरत नहीं, ऑब्वियसली वो 0 ही होगा, सेम होगा. ओके, सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस किया स्ट्रेट लाइन से. अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो. 4 1 जा 4 -5 into 3 -15, so it will be 4 plus 15 and that will be 19. Understood? Similarly ये बी मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस करना है, डिटर्मिनेंट भी लिखना है, और स्क्वायर ब्रैकेट को रिप्लेस करके 2 लाइन ड्रॉ करना है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो आंसर. हैव यू ऑल अंडरस्टूड हाउ डू वी फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स? So now, as we all know how to find out the determinant of matrix, depending upon the value of the determinant of matrix, we have two different types of matrix. First, होता है singular matrix, one line singular matrix. A square matrix A is said to be singular if its determinant is equal to 0. तो अगर कोई मैट्रिक्स है, क्वेश्चन में आया कि check whether it is a singular or not, what will you do?
you will find out the determinant of that matrix. Find out the determinant. Determinant comes out to be 0. Therefore A is a singular matrix. Determinant 0 नहीं आया तो दूसरा टाइप है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट यहाँ पर है देखो. अच्छा इसमें लिखा नहीं है बट इट्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट 0. देखो ये बी है, इसको सॉल्व किया डिटर्मिनेंट 0 तो सिंगुलर मैट्रिक्स. उसके बाद ये ए है, सॉल्व किया 9 आया डिटर्मिनेंट. 9 is not equal to 0, therefore it is a non-singular matrix. So singular means determinant equal to 0, non-singular means determinant is not equal to 0. Is it clear? Okay. Now the last one is a transpose of a matrix. Now what is transpose of a matrix? When a new matrix is obtained by interchanging rows and columns is called as a transpose of a matrix. Transpose of a matrix is written by A, T or A dash. For example, अगर A एक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे? जो रो में है उसको कॉलम में लिख दो. तो -1 5 है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दिया. 3 - 2 सेकेंड कॉलम में, 4 7 थर्ड कॉलम में. बी मैट्रिक्स है, उसको कैसे लिखा? 1 0 - 2 फर्स्ट कॉलम, 8 - 1 2 सेकेंड कॉलम, 4 3 5 थर्ड कॉलम. ट्रांसपोज मैट्रिक्स में और ओरिजिनल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होगा? ऑर्डर चेंज हो जाएगा. पहले 3 रो 2 कॉलम थे, यहाँ पर 2 रो 3 कॉलम हो जाएंगे. और स्क्वायर मैट्रिक्स में तो ऑर्डर चेंज होने का मतलब नहीं है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 है तो वो भी 3 क्रॉस 3 ही होगा. ओके. नाउ रिमार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको याद रखना है. इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ यू कैन चेक इट ऑल्सो. आप ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना, तो कोई भी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जब उसका आप ट्रांसपोज लिखते हो तो यू विल फाइंड दैट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यहाँ पर ऐसा नहीं है. देखो ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, बट ये दोनों मैट्रिक्स डिफरेंट है. दे आर नॉट सेम, इजंट इट? बट अगर ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता और फिर अगर मैंने उसका ट्रांसपोज निकाला होता, तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स एंड द गिवन मैट्रिक्स आर इक्वल. अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी? ओके. सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक में इक्वल होता था, यहां पर भी इक्वल होगा बट नेगेटिव के इक्वल होगा. यानी बी ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी आएगा, या तो बी को बोलो नेगेटिव ऑफ बी ट्रांसपोज आएगा. Is it clear everyone? Okay, so let us quickly revise the new types which we have learned now. 11th one is a symmetric matrix. So symmetric matrix is a matrix. There is no condition on diagonal. Only Aij should be equal to Abi. Jayshree's question is the columns aren't changed into rows. It's the same thing, na Jayashree? When you change a row into column automatically gets changed. Understood? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाया तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम रिप्लेस हो गया ना. समझ में आ रहा है क्या? सी अभी मैंने ये एग्जांपल आपको रो को इंटरचेंज करके बताया ना. अभी आप कॉलम को सोचो, ये फर्स्ट कॉलम है, उसको फर्स्ट रो बना दिया, सेकेंड कॉलम को सेकेंड रो बना दिया, थर्ड कॉलम को थर्ड रो बना दिया. सो व्हेन आई इंटरचेंज रोज, इट इज ऑब्वियसली दैट कॉलम्स आर आल्सो गेटिंग इंटरचेंज. So symmetric when Aij is equal to Abi. Next is skew symmetric. Skew symmetric. Here Aij should be negative of Abi, and also diagonal elements must be equal to 0. Then it is skew symmetric matrix. Okay. After that we have seen singular matrix. Determinant of matrix is not a type of matrix. वो तो कैसे फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट वो बताया.
Singular matrix is a matrix whose determinant is equal to 0. Next, non-singular matrix whose determinant is not equal to 0. Next, transpose of a matrix. Okay, so when you interchange rows and columns, okay, rows will be interchanged with columns. Have you all understood this? All the types of the matrices? Okay. Now, uh, there's a method of finding the or constructing a matrices. We will see that in the example only when we will solve questions based on this. So let's start with exercise 4.4 now. Question number 1 is construction of matrices. So it is given that construct a matrix A which has 3 rows and 2 columns whose elements Aij is given by this formula and this formula. So it's very simple, students. So let me first write this Aij 3 cross 2, 4.4. Question number 1. It is given that A is equal to a matrix Aij of order 3 cross 2. As it says 3 cross 2, so there are 3 rows and 2 columns. 3 rows, so I will make the table accordingly, and 2 columns. So first element will be A11, A12, only 2 because there are only 2 columns, right? Next, just a minute. So A11, A12, after this, second row, A21, A22, and next is A31, A32, right? These are the elements of Aij just by looking at the order of this matrix 3 by 2. We can frame this, construct this matrix. Now, question number 1. What are they saying? That Aij is this I minus j the whole square upon 5 minus I. Let me write that. So first one is Aij I minus j the whole square upon 5 minus I. Now what you have to do is you have to just substitute 1 1, 1 2, 2 1, 2 2 here in place of I and j and get the matrix. Yes? So let's start. A equals to. So first is 1 1. We don't have to find every element and show the calculation. We can do it orally also. So 1 1 will be 1 minus 1 0, 0 square 0. So 0 upon anything is 0. So it is going to be 0. 1 2, 1 minus 2. So 1 minus 2 is minus 1. Minus 1 का square will be plus 1. Right? And I is 1. 1 2 बोला तो I 1 है. तो 5 minus 1 4. इसका मतलब ऊपर 1 और नीचे 4. So 1 by 4. Next 2 1. 2 1. This position. 2 minus 1 1. 1 का square 1. और इधर 2 put करना पड़ेगा I. 5 minus 2 3. So it is going to be 1 by 3. 2 2. 2 minus 2 0. तो 0 1 numerator तो सब 0. 3 1. Now this position. 3 minus 1 2. 2 का square 4. And 5 minus 3 2. So 4 by 2. So it will be 2. Last is 3 3. 3 minus 3 is 0.
जिसको डिफिकल्ट लग रहा है डायरेक्ट करना, आप रफ में 1 by 1 कैलकुलेट कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? कम ऑन एवरीवन, सबको समझ में आ गया कैसे करना है? ये मैट्रिक्स पहले फॉर्म करना है और उसके बाद एक एक एलिमेंट को उसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। So this is the first problem. The second and third is homework, and it's quite easy also. 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2. Same way third one also. सेम मैट्रिक्स के लिए मतलब हर बार आपको ए लिखना है, बाद में ये सॉल्व करना है। क्लियर एवरीवन? किसी को कोई डाउट? ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो बच्चों। क्लासीफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस as a row, a column, a square, a diagonal, a scalar, a unit, an upper triangular, a lower triangular, symmetric, skew symmetric, किसका कौन सा टाइप है वो सब बताना है आपको। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, देख के देखो फर्स्ट वाला। हाँ, मैं बस आपको, आप आंसर मत दो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप केवल ध्यान से सुनो। ये देखो मैट्रिक्स, अभी रो में तो एक ही रो होना चाहिए, सो इट्स नॉट अ रो मैट्रिक्स, इट्स नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स, बट येस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल है क्या? तो डायगोनल में नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए। इधर किधर है जीरो? इधर के जीरो है बट इधर के नहीं है, तो वो डायगोनल भी नहीं है। स्केलर है क्या? स्केलर में भी तो नॉन डायगोनल जीरो होने चाहिए, तो स्केलर भी नहीं है। यूनिट तो है ही नहीं। अच्छा, अपर ट्रायंगुलर है क्या? तो डायगोनल के ऊपर के जीरो है, नीचे के जीरो है, तो इसके लिए ये अपर ट्रायंगुलर है। डायगोनल के नीचे के जीरो है, इसलिए अपर ट्रायंगुलर है। अपर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, क्योंकि ऊपर के जीरो नहीं है, राइट। फिर ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक है क्या? स्क्यू तो नहीं है, क्योंकि स्क्यू में तो 0 0 0 होना चाहिए, वहां पर 3 है। और सिमेट्रिक है क्या? ये -2 है, तो इधर तो -2 होना चाहिए, वो भी नहीं है। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग कैसे मैं चेक कर रहा हूँ एक एक करके? तो ये कोई एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपको टाइप्स अच्छे से सब लर्न हो जाएंगे। तो ये क्या क्या था? ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स था और एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था, दैट्स ऑल। यहाँ पर देखूंगा तो ये स्क्वायर है और ये सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है। कैन यू सी दैट? 0 0 0 दिख गया तो तुरंत क्लिक होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक है क्या ये। तो 0 0 0 4 -4 7 -7 -3 3, सो ये स्क्वायर है और स्क्यू सिमेट्रिक है। बाकी अपर लोअर स्केलर डायगोनल कुछ भी नहीं होगा। ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स है, बस बाकी कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सो लाइक दैट, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लोगे, ठीक है। इसमें मुझे कुछ कराने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, the question says that which of the following matrices are singular or non-singular? What will you do? Which of the following matrices are singular or non-singular? How will you solve this? How will you find out which of them are singular or non-singular? Come on, tell me. What zero, Sriraj? Yes, we will find out the determinant, right? If determinant is 0, then we will call it as a singular or a non-singular, isn't it, students? So actually the first question and the second question can be solved easily by properties of determinant, but अभी हम property को ignore कर रहे हैं, इसके लिए हम इसको normal method से ही solve करेंगे. So can you all try the first problem? Come on, write this as let capital A is this matrix, and then consider determinant of A. Get the determinant of this. You should get final as 0. Come on, do it. I will also do along with you. Third ka first. Start it. Suppose I'm not writing the question, I'm directly writing the solution. Consider determinant of A.
A, B, C, P, Q, R. Then we have 2A, 2B, 2C. So 2A, 2B, 2C. Okay. Yes, Jatin, can you listen to me now? Yes. Start solving this. Come on. Plus, minus, plus. How do we do it? Check whether the determinant is 0 or not. Yes. Let me solve this question now. So how do we solve plus, minus, plus? फिर प्लस ए लिखते हैं हम लोग. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीटेड, इसका डिटर्मिनेंट. So that will be 2QC or CQ. Let me write in the order. 2CQ minus QR. Then minus B. 2CP minus PR. Then plus C. No, I am just इस साइड का तो किया नहीं मैंने. सॉरी. इस साइड का भी होगा ना. सो माइनस 2BR plus RQ. This is first. Then माइनस बी करेंगे तो 2CP minus PR minus 2AR plus PR. Last one is plus C, that is 2BP minus PQ
minus 2aq plus pq. फिर अंदर मल्टीप्लाई करो सबको, सो इट विल बी 2acq aqr 2abr arq. माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस 2bcp प्लस bpr प्लस 2abr minus bpr. Last will be 2bcp minus cpq minus 2acq plus cpq. Now see which terms are getting cancelled. So plus 2acq minus 2acq cancel, minus aqr plus aqr cancel, then minus 2abr plus 2abr cancel, minus 2bcp plus 2bcp cancel, cpq cancel, and bpr cancel. So you can see all the elements gets cancelled, so it is 0. Determinant of A is 0, therefore A is a singular matrix. I hope everyone understood this. Okay. So all the questions are homework. It's the same. You have to find a determinant. If determinant comes out to be 0, you will say singular, otherwise non-singular. Let's start with question number 4. With the question 4, find K if the following matrices are singular. It means it is already given that the given matrices are singular. It means the determinant is 0. So I have to directly take as determinant 0 and solve. So definitely the missing value k will be known to me then. So let us start with the third problem. Fourth ka third. Let A is the given matrix, that is k minus 1 2 3 3 1 2 2 3 3 1 2 1 minus 2 4. Okay, so I'll start with like this, like since A is a singular matrix, therefore determinant of A will be equal to 0. So now determinant means what? जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन डिटर्मिनेंट हो जाएगा. ये पूरा जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाएगा. अभी इसको सॉल्व करना है हमको. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस एंड गेट द वैल्यू ऑफ k. प्लस माइनस प्लस, so plus k minus 1, it will be 4 minus minus 4 minus 2 12 minus 2. आई एम डूइंग डायरेक्टली बिकॉज अभी तक तो प्रैक्टिस हो गया रहेगा. जिसने घर पे रेगुलरली स्टडी करते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बट बस जो क्लास में लेक्चर अटेंड करते हैं ना और बाद में पढ़ते नहीं उनको सब ऊपर से जाता होगा. k minus 1 4 plus 4 8
minus 2 into 10 plus 3 into minus 7 is 0. So it is going to be 8k minus 8 minus 20 minus 21 equals to 0. So 8k minus 49 equal to 0. 8k is 49. So k is 49 by 8 is the correct answer. Yes, Saisha, Priya, right. So it's very simple type of problem. It is given that it's a singular, so we have to take that as equal determinant as equal to 0 and then solve. I hope everyone would have done this, and it's quite simple problem. Rest of the questions are homework. Question number 5th. 5 1 minus 1 3 2 0. 5 1 minus 1 3 2 0. This is A, right? क्वेश्चन में बोला है फाइंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो पहले तो हम ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे. वो कैसे करेंगे? ए ट्रांसपोज इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम. तो जो फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ मैं. 5 1 minus 1 3 2 0 ये हो गया. ओके, दिस इज ए ट्रांसपोज. और वापस से मुझे इसका ट्रांसपोज करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. तो वापस ही ये जो रोज में उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो. सो इट्स लाइक 5 3 1 2 minus 1 0. So you will actually see here that it is equal to A. So actually it's a property that A transpose ka transpose is the same matrix. Hence it is done. Easy, students. Okay. So 5th is done. 6 is also same. A transpose ka transpose. Okay. Now 7th. 7th, it's given that this matrix is a symmetric matrix. Find ABC. Now symmetric means what? Aij equal to Aji. Right? So can you tell me what is the position of A? A. Position of A, 1 3. It should be equal to 3 1. What is the element in the 3 1 position? What is the element in the 3 1 position? Minus 4. Directly A equal to minus 4 हो गया A का वैल्यू. B का पोजीशन, B का पोजीशन 2 1. It should be equal to 1 2. 1 2 में कौन है? 3 by 5. So B equal to 3 by 5. C का पोजीशन 3 2. Third row second column. It should be equal to 2 3 minus 7 हो गया. एक लाइन के अंदर आंसर. तो आंसर कैसे लिखेंगे? मैं लिख नहीं रहा हूँ, इट्स होमवर्क. आप लिखना है सिंस दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देयरफॉर एआई जे इक्वल टू ए जे आई. और फिर नीचे लगातार ए इक्वल टू -4, बी इक्वल टू 3/5, सी इक्वल टू -7. दैट्स ऑल. 8 क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक, नॉन डायगोनल 0. अब यहाँ पर क्या होंगे? ए आई जे इज माइनस ए जे आई. एक्स का पोजिशन 1 3, तो वो क्या होगा? 3 1 का नेगेटिव होगा ना. तो 3 1 3/2 है, तो एक्स क्या होगा? -3/2. समझा क्या? y 2 1, वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 2 का नेगेटिव, ये -5 है, तो y क्या होगा? +5 है. z 2 3 किसके इक्वल होगा? 3 2 का नेगेटिव, -√2 का नेगेटिव, √2. हो गया आंसर.
I hope everyone understood this. It's very simple now. Next question, question number 9. Let's read the question. For each of the following matrices, using its transpose, state whether it is symmetric or skew symmetric. याद करो ट्रांसपोज का क्या रिलेशन था सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से. अगर A इक्वल टू A ट्रांसपोज आया, A ट्रांसपोज इक्वल टू A आया, तो हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. और A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव A आया, तो हम बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. यस और नो स्टूडेंट्स? तो अगर हमने ट्रांसपोज किया और डायरेक्ट दिख गया कि इक्वल ही है, तो लिख देंगे A ट्रांसपोज इक्वल टू A, देयरफॉर सिमेट्रिक. इक्वल नहीं दिख रहा है तो माइनस कॉमन लेने का सब में से, तो वो माइनस A मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? जैसे देखो फर्स्ट सम में आप जब इसका ट्रांसपोज लिखोगे ना, तो 1 2 -5 इधर लिखोगे, तो देखो उधर ही है. 2 -3 4 है, 2 -3 4, -5 4 9 वो भी है. तो इसका A ट्रांसपोज इक्वल टू A आएगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया. सिमेट्रिक का प्रॉपर्टी नहीं चेक करना है, ट्रांसपोज का यूज करके बताना है. यहां पर देखो 2 5 1, इधर है 2 -5 -1, नेगेटिव हो गया. 5 -5 4 6, इधर है 5 4 -6. दिख रहा है साइन चेंज हो रहा है सबका. तो जब इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो फिर हम माइनस कॉमन लेंगे. तो माइनस कॉमन लेने के बाद जो बचेगा वो ए हो जाएगा. तो फिर आपको मिल जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए. मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको? बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स. अगर इक्वल आया तो डायरेक्टली लिखना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. इक्वल नहीं आया तो माइनस कॉमन लेना, तो फिर वापस माइनस ए आ जाएगा. लास्ट क्वेश्चन 10th कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस. ऑलरेडी दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ना यार. ये सर नो 3 क्रॉस 3 का है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. बाद में एक एक 11 22 12 13 31 32 33 21 22 23 सब एलिमेंट्स पुट करके हम लोग को वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा. आई होप एवरीवन अंडरस्टूड एंड कैन मैनेज द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज 4.4. yes, easy, great. So now for the next exercise we are going to learn algebra of matrices. Algebra means how do we add, how do we subtract, how do we multiply, how do we equate two matrices. Okay, so we will be studying 4 different types of algebra of matrices. Equality of matrices, multiplication of a matrices by a scalar, मतलब by a number, addition of matrices and multiplication of two matrices. ये मेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये पूरा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो इस अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर ही बेस्ड है. 4.5. वी ऑल्सो हैव 4.6, उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा. फाइन. सो आज हम लोग बस कंसेप्ट सीखते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस का. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम सॉल्व करेंगे. So the next concept which we are going to cover today is about algebra of matrices. सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. Equality of matrices. What is this concept? Suppose if you have two matrices A, B, C, D, and there's another matrix P, Q, R, S. Both are having same order and it is given that they are equal. So first of all, if the matrices are equal,
Obviously their order must be same. Yes, so that's बट ऑब्वियस थिंग कि वो सेम ही होने वाला है ऑर्डर. तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं. बस यही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इट मींस ए विल बी इक्वल टू पी, बी विल बी इक्वल टू क्यू. कोई भी एलिमेंट किसी से भी इक्वल नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग, राइट. सी विल बी इक्वल टू आर एंड डी विल बी इक्वल टू एस. पोजीशन वाइज 1 1 वाला 1 1 से इक्वल होगा, 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2. This is called as equality of matrices. Very simple. Next है addition of matrices. How do we add two matrices? Okay. Now to add two matrices, the only condition, when you can add two matrices is their order must be equal. So order of the matrices to be added must be same. अगर दो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो वी कैन नॉट ऐड देम. ओके, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल. सपोज एक मैट्रिक्स है 2 1 -1 5 2 3. ऐड करना है 5 6 2 0. हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते बिकॉज द फर्स्ट मैट्रिक्स इज हैविंग द ऑर्डर 3 row 2 column and this is 2 by 2. The orders are different, so we cannot add them. So we can add two matrix only when their orders are same. So suppose if it is -1 0, now this is also 3 by 2, this is also 3 by 2, so it can be added. And how can we add them? Corresponding elements are getting added, so the resultant matrix will also be having the same order. तो करस्पॉन्डिंग मतलब 2 + 5 7, 1 + 6 7, -1 + 2 + 1, 5 + 0 5, 2 + minus plus minus minus 2 - 1 1, then 3 + 0 3. Have you all understood the addition of two matrices? Yes, everyone. So the condition is the order should be same and then corresponding elements can be added. Similarly, third one, subtraction of two matrices. Subtraction. So यहाँ पर भी सेम है, ऑर्डर शुड बी सेम. ऑर्डर सेम होना चाहिए तो ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 3 5 -6 4 -2 1 0 5. कैन वी सब्ट्रैक्ट देम? यस, बिकॉज ये 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है, तो वी कैन सब्ट्रैक्ट देम. सब्ट्रैक्शन कैसे होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करो. तो देखो 3 - -2, so it is going to be 3 + 2, that will be 5. Then 5 - 1 4, then -6 - 0 -6, then 4 - 5 -1. वो तो हमको मालूम है ना, माइनस माइनस रहेगा तो ऐड होगा, साइन विल बी माइनस, माइनस प्लस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट रहेगा, साइन विल बी द ग्रेटर साइन. समझा सबको? सब्ट्रैक्शन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी टू मैट्रिसेस. ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एंड अ स्केलर. मतलब मल्टीप्लिकेशन में दो टाइप होते हैं. मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे होगा, और एक होता है मैट्रिक्स स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कब होगा. तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स का नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग लर्न करेंगे. अभी हमको मैट्रिक्स स्केलर देखना है. इसका मतलब क्या होता है? सपोज एक मैट्रिक्स है यहाँ पर ए,
2 1 3 0 -2 5। और मुझे फाइंड करने को आया फाइंड 5a। इसका मतलब स्केलर मल्टीपल ऑफ a, 5a। किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो क्या होगा, 5 हम ऐसे ही लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करेंगे, और बाद में ये जो 5 नंबर मैट्रिक्स के बाहर है उसका मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इट इज 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 0 0, दिस इज -10 एंड दिस इज 25। ये हमारा 5a हो जाएगा। ऐसे कोई भी नंबर 5 -5 2 1/2 3/2 कोई भी नंबर अगर रहेगा तो हम उसका अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये बात। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, यस फाइन। So now on the basis of this all four algebra of matrices, we can start with the next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस आपको खुद से ही करने, ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। 4.5 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी भी गिवन है। डिवीजन ऑफ टू मैट्रिसेस नहीं होता है अनिश, ओके। शो दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, शो करना है। क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे ए प्लस बी, उसमें पहले ए लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर बी लिखोगे, उनको ऐड करोगे, दैट विल बी नंबर 1। फिर राइट हैंड साइड लोगे बी प्लस ए, उसमें पहले बी लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, फिर ए लिखोगे, राइट। उसको सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे नंबर 2। ऑब्वियसली ए प्लस बी विल बी इक्वल टू बी प्लस ए, राइट। वो देने को लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 LHS इक्वल टू RHS, हेंस द प्रूफ। समझा क्या आप लोगों को? आप लोग सोचते रहोगे सर ये क्यों प्रूफ करना है, हमने बचपन से सीखा ए प्लस बी सेम एज बी प्लस ए, बट इसमें ऐसा कुछ तो डिफरेंट होने वाला है, इसके लिए ये कर रहे हो। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको इसका मैं स्पेसिफिक रीजन बताऊंगा कि हमने क्यों ए प्लस बी और बी प्लस ए को चेक किया। यस, इट्स अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट क्यों चेक किया उसके पीछे भी एक रीजन है, दैट वी विल बी डूइंग इट व्हेन वी विल डू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो आई थिंक फर्स्ट वाला हो जाएगा। सेकेंड वाला क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लो, ए प्लस बी ब्रैकेट में फिर प्लस सी, तो पहला ए लिखो, बी लिखो और सी को सी लिखो पहला, क्योंकि पहले ए प्लस बी ऐड होगा तो सी ऐड होगा ना, नहीं तो पहले लिख दो तीनों, बट ऐड पहले दो का करेंगे, सी को बार बार कॉपी करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे, बाद में जब ए प्लस बी सिंगल मैट्रिक्स बन जाएगा तो उसको फिर सी में ऐड कर देंगे, वो जो आंसर आएगा उसको नंबर 1 करेंगे। फिर वैसे ही राइट हैंड साइड लेंगे हम, उसमें बी प्लस सी को ऐड करते जाएंगे और ए को ऐसे ही रखते जाएंगे, बाद में जब बी प्लस सी ऐड होके एक मैट्रिक्स बनेगा फिर उसको ए में ऐड करके नंबर 2 करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस द प्रूफ। यस, क्लियर है सबको? तो ये एक क्वेश्चन ही आपको है जो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज जो भी हमने लेक्चर्स में कराया आपको काम बहुत सारे हैं। 4.4 पूरा कंप्लीट करना है, ये पूरे जो भी मैंने टाइप्स पढ़ा है उन सबको रिवाइज करना है, ठीक है, एंड 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन भी करना है। तो इतना कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। आई विल सेंड यू द PDF ऑल्सो। चलो, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।
I'll tell Saisha where to submit the homework. Till now, just solve. No problem. स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल होना नेसेसरी है. Yes, it's compulsory.